ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਦਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਬਚਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੇਟ ਬਚਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਇਨਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੇਜੋ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਚਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਮੀਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮੈਸੇजेस ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸਿਰਫ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ओके ओके करिए भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। आज सारे मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था क्योंकि ना मेरा काम है कोई विवाद करना या किसी के ऊपर दोष लगाना, लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहां मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना, ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के, कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका, और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आजाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है
वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और एसएचओ को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने किसी कोई भी। 119 में इससे पर्चा कराया और उसके बाद इसके ऊपर भगोड़ा है, इसके साथ जो इसका लड़का है चंदन वो भगोड़ा है। अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। और ये देखो ये यहाँ पे लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है, ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया है, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। अपने यशु के वीडियोस के लिए इंटरनेट पर वायरल रहने वाले पास्टर बजिंदर पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाए और जिसको लेकर पंजाब वुमेन कमीशन ने भी इस पूरे मामले में अब सो मोटो एक्शन लिया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन राजलाली गिल मैम मौजूद हैं। मैम, ये जो मैटर है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या सो मोटो एक्शन जो है पंजाब वुमेन कमीशन के द्वारा लिया गया है? देखो, सो मोटो एक्शन जो है इसके ऊपर यही लिया गया है कि हमको इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पास्टर बजिंदर के बारे में, ये हिस्ट्री शीटर है। 2008 में भी इनके ऊपर केस था, मर्डर केस में अंदर जा चुके हैं आप वो, और कैसे बरी हुए हैं दैट्स अ डिफरेंट इशू। फिर ये 2017 में भी इनके ऊपर केस था। तो ये जो है ना, बार बार अगर किसी की हैबिट होती है कि इस तरह के केसेस में अंदर जाने की, और उसके बाद में ये लड़की ने जो अभी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं वो भी इतनी सीरियस एलिगेशंस हैं जिसके अंदर की वो उनको स्टॉकिंग भी है, इसके अंदर इंटिमिडेशन भी है इसके अंदर। तो वो लड़की ने जब इसकी रिपोर्ट लिखाई है तब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये लड़की के अंदर कोई इवल स्पिरिट आती है, उसकी वजह से ये ऐसे बातें कर रही है। तो ये सब नहीं है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है और सो मोटो हमने लिया है। 6 मार्च तक इनसे हमने रिपोर्ट भी मांगी है इस चीज की। जी मैम, क्योंकि देखा गया है कि पहले भी इन पे, जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री शीटर हैं, मर्डर केसेस भी रहे हैं, रेप केसेस भी इन पर पहले रहे हैं इस तरह की। तो क्या आपको लगता है, क्या एक्शन ऐसा लिया जाना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं वो रिपीट ना हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारा कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि मतलब मुजरिमों को, आपको ऐसा नहीं लगता कि बार बार इस तरह के अपराध करने का मौका मिलता है? देखिए, और भी पहले भी कुछ बाबा वो अंदर भी गए, जेल भी गए, इस तरह से रेप केसेस के अंदर भी गए, फिर वो बाहर भी आ जाते हैं। डेफिनेटली हमको जो है इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल होनी चाहिए। और जो लड़की थी, मैंने उसे जब पर्सनली बात भी की है, बहुत डरी हुई थी कि मेरे को बार बार संस्था से या चर्च से या कुछ लोग जो हैं वो धमका रहे हैं कि हम आपको और आपकी फैमिली को मार डालेंगे। तो फिर मैंने जो सिट बनी है, उनके जो एसपी साहब हैं, मैंने उनसे बात भी की है और उनको बोला है कि लड़की के लिए प्रोटेक्शन जो है, पर्सनल सिक्योरिटी उसको दी जानी चाहिए। अब वो जरूरी, डेफिनेटली दैट मस्ट बी इन एक्शन। बाकी मैं पता भी कर लेती हूँ कि क्या है। ये कल की बात है जब हुई है। एंड देखो, जहां तक ये सवाल है कि इनके ऊपर जो ये कोई दबाव डालते हैं कि हम शायद छूट जाएंगे या मनी पावर दिखाते हैं, इसके अंदर हमारे प्रशासन को, पुलिस को किसी भी तरह की मेरा ख्याल ढील नहीं देंगे और इसकी पूरी जानकारी होगी, पूरी डिटेल से इसका पूरा हिस्ट्री देखी जाएगी जो इनकी हिस्ट्री पीछे की है, और जरूर जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार भी किया। 6 मार्च तक मैम अपने पूरी जानकारी मांगी? 6 मार्च तक मांगी है, कल की मांगी है, और जो सिट है वो अपना कंप्लीट करके इंक्वायरी हमको रिपोर्ट भी भेजेंगे। एंड आई एम श्योर जब एफआईआर हो चुकी है तो इनकी अरेस्ट भी जरूर बनेगी। मैम, क्या आप ये जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, क्या उसे आपने मिलने के लिए बुलाया है या आप उससे मिलने जाएंगी? क्या देखिए, ऐसा है कि जो कंप्लेंट है वो अभी शी सेड कि मैं बीमार हूँ और मेरा कोई ऑपरेशन होके हटा है, तो शी वाज नॉट इन ए कंडीशन कि हमारे पास आती, और वैसे भी वो डरी हुई है कि मैं घर से बाहर अकेली नहीं निकलूंगी। उसके परिवार वाले मेंबर भी यही कहते हैं कि हम घर से नहीं निकलेंगे, हमको मरने की और मारने की धमकी दी जाती है। तो अभी हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर मिलके भी आऊंगी।
मैम नहीं लगता आपको कि जैसे क्योंकि काफी रसूख वाले ये हैं पास्टर बलजिंदर, इतने इनके फॉलोअर्स हैं और ये तो आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इस केस में जो है एक निष्कर्ष पर आकर एक शिकंजा जो है कसना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि वो कहीं इधर उधर ना हो जाए या फिर अपनी जो कुछ और पावर्स हो, चाहे पॉलिटिकली हो चाहे और जो भी हो, उनका इस्तेमाल करके एक बार फिर से वो बचने की कोशिश ना करें? देखिए, जहां तक रसूख की बात है, यहाँ बड़े बड़े रसूख वाले अंदर गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रसूख, मनी पावर, ये सब कुछ काम नहीं आता है जब आपका क्राइम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, तभी इसका एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। और मेरे को नहीं लगता कि बड़े बड़े रसूख वाले हमने देखा है कि वो अंदर गए हैं, उनको पनिश किया गया है, तो ये ऐसे बच सकेंगे रसूख की वजह से? आई डोंट थिंक सो। और कई बार हमने देखा है इनके जो वीडियोस काफी वायरल हैं, हम सभी ने देखे हैं, उसमें कई बार ये छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें लड़के भी शामिल होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब जब इन्हें बुक किया गया है तो इनके और जो मैटर्स हैं वो भी खोले जाएंगे? डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जरूर इसी वजह से तो सिट बनी है ना, कि सारी चीजों को देखेंगे और उसके फैक्ट्स जो है बाहर लेके आएंगे और अकॉर्डिंगली इनको जो है पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन राजलाली गिल मैम हमसे बातचीत कर रही थी और उन्होंने बताया कि इस केस में पंजाब वुमेन कमीशन ने सुओ मोटो लिया है और जब तक इस केस में कोई निष्कर्ष या कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वुमेन कमीशन इसे फॉलो करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो कंप्लेनेंट से मिलने भी जाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज, मोहाली।